Hello, students, children. Good morning to all of you. Today moral is, as you know more, you grow more. It means students, आप उतना ही ग्रो करेंगे जितना ज़्यादा आप जानेंगे, या फिर जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे. ठीक है बेटा. ग्रो सिर्फ हमारे फिज़िकली हमारा फिज़िकल एजुकेशन ही नहीं होता है. एक्चुअली में ग्रोथ दो तरीके से होता है हर व्यक्ति का, मेंटल और फिज़िकल. हम फिज़िकल तो डेली एजुकेशन फिज़िकल ग्रो करते ही हैं, लेकिन जो मेंटली ग्रो होता है ये कैसे होता है, हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे. ओके. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, I am telling to you exercise 4.2. I'm explaining to you exercise 4.2, and I was told you that this exercise is based on the Bode-Moss rule. I hope all students will be learn that what is this Bode-Moss rule, because you are studied this rule from your previous class. All student is knowing that B stands for bracket, and there are 4 types of bracket. First bracket is bar bracket, and second is first bracket. It is also known as the small bracket. Third is square bracket, and third is curly bracket. Fourth is a square bracket, and O stands for off, D for divide, M for multiply, और A for addition और S for subtraction. Students, I was make a chart for this rule, and I also said that note this is rule in your fair copy. I hope all students will complete this work in your copy. Students, as you know that I explained to you question number 1. So I am going to explain to you question number 2. देखो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पे दिया हुआ है 2 होल हाफ ऑफ 1 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 होल 3/8. Then students, what will you do? You have learned that you will solve the first bracket. Then it will make 2 2s are 4 and 1 5/2. You know that what is the means of means multiply. Then you will solve this. 4 1s are 4 and 3 7 7/4 minus 5 1s are 5 and 1 6/5 bracket close. 8 1s are 8 and 3 11/8. This is your simplifying line. Now you will solve the bracket. 5/2 into, you will take to LCM of 5 and 4. What will be the LCM of 5 and 4? The LCM of 4 and 5 is 20. Now you will divide 20 by 4. Then the quotient will come 5. And now you will multiply 5 to 7. The result will come 35. Minus 20 divided by 5. It gives 4, and 4 6 are 24 divided by 11/8. Next line is 5/2 into 34 subtracted 24. What will come here? 20. 11/20. This is the divide. It will make multiply. When it will make multiply, the numerator and denominator will change. So it will make 8/11. Now you have to do cancellation. 11 1s are 11. 11 1s are 11. 5 4s are 20 and 2 4s are 8. या फिर ऐसे करो 4 2s are 8 और 2 1s are 2. The answer is 1. ठीक है बच्चों. यहाँ पे हमें पहले ऑफ लेना था. ऑफ लेते हैं और फिर कैंसिल करते तो भी 1 ही आता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑफ लेना है. ठीक है बच्चों. आई होप
I hope students you have understood this question. One time more I am going to explain this. First one, you will simplify or mix fraction. This will make 5 upon 2. It gives 7 by 4. Here will come 6 by 5 and here 11 by 8. Now you will solve this bracket. To solve this bracket, you have to take up first of all LCM of 4 and 5. The LCM of 4 and 5 is 20. You will simplify this. It gives 11 by 20. At last you have to make a cancellation of all. 11 ones are 11, 5 fours are 20, 4 twos are 8, 2 ones are 2. The answer is 1. Most of all students has solved these questions. Okay class, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें से, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा. मैं आपको सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, 17 और 15, क्योंकि ये बच्चों आपको देखने में बड़ा लग रहा है. हालांकि ये आपको देखने में बिगर लग रहा है, लेकिन ये बिग है नहीं. तो मैं आपको 15 और 17 सॉल्व करने जा रही हूँ. ओके बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15. तो इसमें आपको एक ब्रैकेट मिल रहा है. ये कौन सा ब्रैकेट है? बार ब्रैकेट. आपको इसे सबसे पहले सॉल्व करना है. और बच्चों कोई भी ब्रैकेट हो, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो इसमें देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ. आपको पता है ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी 1/3 का 1/2 के साथ इनटू किया जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1/6. तो आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 2/3 -1/2 -1/6. अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है बच्चों, केवल आपने इसको इतना सॉल्व किया है. आप लिखोगे अपॉन. यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पे बार लगा हुआ है और इस पे अलग अलग बार लिखा हुआ है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका एक फ्रैक्शन है, इसको क्या लेंगे आप? एलसीएम लेंगे. यहाँ पे हो जाएगा 6, हेयर विल कम 5. 3 से डिवाइड होगा 6, आएगा कितना? 2, और 2 से कितना होता है? 4. इसको आपने सॉल्व किया. यहाँ पे क्या आया? ऑफ मीन्स इनटू. ठीक है, 1/6, 1/6 ये प्लस हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 2/6. और 2 1s are 2, 2 3s are 6. यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 1/3. ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे हम लोग. यहाँ पे आएगा 2/3 माइनस इन दोनों का भी हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6. तो ये हो जाएगा 3. हम लोग इसको करेंगे. यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6. डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, 2 - 1. ठीक है, अभी ये सॉल्व हो रहा है. अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपॉन. 5 में 4 माइनस होगा 1/6 इंटू 1/3. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. तो बेटा अब आएगा यहाँ पे 2/3 माइनस 3 में 3 में 1 माइनस करेंगे. कितना हो जाएगा? 2/6. ठीक है, 2/6 को हम लोग कैंसिल कर देंगे. कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 अपॉन 1/6 इंटू 1/3. ये आ गया. इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3. 1/3 अपॉन 1/6 इंटू 1/3. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको हम लोग चेंज कर देंगे. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू, चेंज करेंगे, हो जाएगा 6/1 इंटू 3/1. तो 3 से 3 कैंसिल, ओनली क्या रिमेन हुआ? 6 रिमेन हुआ. तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, देखने में भले बड़ा लगे, देखो ये आप देख के सोच रहे होंगे बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. दिस अ वेरी डिफ़िकल्ट, बट डिफ़िकल्ट नहीं है. आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया? बार ब्रैकेट सॉल्व किया. बार ब्रैकेट में ऑफ था, यानी कि इनटू ले लिया. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ गया 3 - 1/6. और इसको भी सॉल्व किया, 5 - 4 ये आ गया 1/6 इंटू 1/3. पूरा हमने जब सॉल्व किया तो 2 - 3 -1/3 आया. तो 2 में 1 लेस कर दिया, 1/3. ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओनली क्या रिमेन हुआ? 6 रिमेन हुआ. तो ये आपका क्या हो गया? 15 नंबर आंसर. ओके, अब बच्चों देखो ये आपका है 17 नंबर. इसमें आपको क्या गिवन है? 1 होल 1/4. ऑफ मीन्स आप जानते हो इनटू. ठीक है, फिर आपके पास बेटा क्वेश्चन मिक्स में लिखा हुआ है. मैं सिंप्लीफाई करके राइट कर रही हूँ. ठीक है, अब आप समझ जाना, मैं 17 नंबर सॉल्व कर रही हूँ. आपका क्वेश्चन मिक्स में है, मैं सिंप्लीफाई करके राइट कर रही हूँ. ठीक है, तुम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 4 1 जा 4 और 1 5. दिस विल मेक 5/4. ऑफ मीन्स इनटू. नाउ ब्रैकेट
4 3 = 12 एंड 1 13, तो ये हो जाएगा 13/4। अपॉन में है 2 2 = 4 और 1 5/2। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों माइनस, आप लगाओ माइनस, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप इसको क्या कर लेंगे, केवल सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 = 4 1 5/4, 4 3 = 12 1 13/4, 2 2 = 4 1 5/2। आपको आता होगा सब बच्चों को। अब आप कर लीजिएगा 5 2 = 10 और 1 11/5। अपॉन में केवल 2 दिया है तो हम लोग 2 के अपॉन में 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व करने पर बच्चों हमारे पास अपॉन में अपॉन है, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको वी विल राइट टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/2। तो 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/5, यानी कि हमने डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर लिया। और जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। वही काम कर लिया, ठीक है। -11/5 × 1/2। अब देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 5 = 10 हो गया और 5 2 = 10 यहाँ भी। अब आपको इजी हो गया। 5/4 -13/10 -11/10, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 5/4 × 13 में 11 लेस करोगे कितना आएगा, 2 2/10, तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और इक्वल्स टू 1/4। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी था बच्चों, कुछ नहीं था। बस ये जो अपॉन डिवाइड में है इसी को आपको क्या कर लेना है, पलट लेना है। पलटने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप सारा स्टेप बाय स्टेप जैसे सॉल्व करते करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखो, आपको मैं बताने जा रही हूँ 19 नंबर में। आपको थोड़ा देखने में बिग लग रहा होगा, तो मैं आपको 19 नंबर बताती हूँ। देखो 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, 1/3 ऑफ मीन्स इनटू, अंडर ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 प्लस स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट 1/3 इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखने में भले भी लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट करिए सॉल्व। तो यहाँ पे बाकी एज इट इज़ को राइट कर देंगे। ये भी आपका स्मॉल ब्रैकेट और ये भी स्मॉल ब्रैकेट, दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला काम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना। 1/3 इंटू, इसे ऐड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 2/3 ब्रैकेट में रहने दो, और 1/3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 इंटू कर्ली ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 प्लस इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/3। ये ब्रैकेट ओपन। नाउ यू विल क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड यू हैव टू क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो। आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब आप नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑफ लेना चाहिए। ऑफ इसमें है नहीं, फिर डिवाइड करना चाहिए, वो भी नहीं है, फिर क्या करना चाहिए, इनटू करना चाहिए। तो करेंगे इनटू, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 1/3 माइनस 1/9 प्लस 2/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ इंटू लगा है, इंटू लिखा रह दो। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में करेंगे। यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 इंटू कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों हमारे पास माइनस और प्लस है। हम लोग एक साथ एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव 3 और 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, 1/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस
स्क्वायर ब्रैकेट 1/3, यहाँ पे देखो बच्चों ये प्लस में है और ये भी प्लस में है ना, प्लस प्लस वाले को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। तो क्या हो गया यहाँ पे आपके पास 8/9। अभी इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप लिखेंगे 1/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस, ये ब्रैकेट आपका ओपन हो चुका है बच्चों, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 1 = 8/3 9 = 27, ठीक। तो अब हम लोग इसको भी ओपन कर देंगे। और अब हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड। तो करते हैं डिवाइड। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 2/3 इंटू 3/1 माइनस 8/27। तो 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रिमाइन हुआ, 2/3 माइनस 8/27। नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दिस and the LCM of this will make 27. Now here will come, जब आप डिवाइड करेंगे 27 को 3 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 27 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 9। और 9 2 ज़ा 9 का 2 से इंटू करेंगे तो 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18। अब आप क्या यूज़ करेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस का सिंबल है तो माइनस माइनस हो जाएगा। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। और 1 का इसके साथ इंटू करेंगे 8 के साथ, ठीक। तो 1 का 8 के साथ इंटू करने पे आपके पास क्या आएगा बच्चों, 8 × 1 = 8। और आपको 18 में 8 माइनस करना है, यू हैव टू कम 10, 10/27। तो बच्चों आपके पास क्या है, 10/27। आप देख रहे हो इसमें से ना तो न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर, यानी 10 और 27 एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना तो आप इसे मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको 10/27 राइट कर देंगे। एक बार फिर से देखो बच्चों, पूरा आप समझ जाइए। यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, इनटू में स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1/3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 इंटू करली ब्रैकेट और वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको पता है जब भी कभी क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट एक साथ आ जाए, फिलहाल यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट आपका मिस है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं, हमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट। हमने देखा यहाँ स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/3 और प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। कैसे होगा, ये इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। बड़े हो गए हो ना बच्चों, तो ये सब आप कर लिया करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइन में करेंगे उतना ज़्यादा आपको लेंथी जाएगा, आप कम लाइन में करेंगे क्वेश्चन कम लेंथी जाएगा। तो ये हो गया 2/3। इसमें से अभी हम कुछ और नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आगे सॉल्व करेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट को। यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब हमने देखा ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया। स्मॉल ब्रैकेट जैसे ही ओपन हुआ, हमने देखा हमारे पास आया नेक्स्ट ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। और अब हम एक करली ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड इसमें है नहीं, हमें डिवाइड करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपको मिला मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, बाकी एज इट इज़ राइट कर दिया। तो आपके पास हो गया 1/9, ठीक है। अब आप देखेंगे ये करली ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इन तीनों का क्या, माइनस भी है प्लस भी है, एक साथ सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो गया 9। तो यहाँ पे हमने 9 को 3 से जब डिवाइड किया तो आया 3, 3 1 ज़ा 3, 9 1 ज़ा 9, 1 का इंटू किया 1 आया। इसके साथ डिवाइड करने पे आया 3 और 3 2 से क्या होता है 6 आ गया। आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। तो इसीलिए पहले 3 और 6 को ऐड कर लिया, क्योंकि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक है। तो 3 और 6 इन दोनों का सिंबल सेम है। कुछ बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, क्या करेंगे 3 - 1 + 6। तो बच्चों आप अभी तो कर लोगे, अभी तो आंसर आ जाएगा 3 - 1 + 6, यानी कि 8 तो आएगा। लेकिन आपको फ्यूचर में मिस्टेक होगी, तो आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ ऐड करना है। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 8। तो आपका ये कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसको ओपन होगा हम क्या देखेंगे, 1/3 इंटू 8/9, 8 1 ज़ा 8 और 9 3 ज़ा 27। हमने देखा सारे ब्रैकेट ओपन हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, इंटू, डिवाइड, माइनस। सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, करेंगे
करेंगे जब डिवाइड, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लिया। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 2/3, 2/3 माइनस 8/27. You have to take LCM of this. Now this the result will give 18 minus 8, and you know that 18 minus 8 equals to 10, 10/27. This is your answer. Okay students, अब बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ऑल सिंप्लीफाई आपको सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगी यू कैन आस्क मी। ओके, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 21 to 31. इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व देन यू हैव टू ट्राई, ओनली ट्राई। ओके, अगर आपको आता है वेल डन, सुपर। इफ़ यू कैन नॉट डू देन आई विल एक्सप्लेन टू यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके क्लास, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।